Welcome to the Competitive Scholar. Today we are just starting our new subject of optional subjects of CSS, which is basically the psychology. I choose this subject in my CSS journey because it's quite easy, and also my background, educational background is related to science, so that's why I choose it. It's very mark scoring subject. If anybody have this subject, let's start our journey together. Okay, so first of all we will see that the outline of psychology, nature and scope of psychology, in which different thought of schools, perspective, models and definitions, and also its scope in the real world of life, and recent trends related to psychology, biological basis of behavior, sensations and perception, learning and memory, motivation and emotion, psychological assessment, personality, and so many other things like intelligence, social influence and group dynamics, abnormal and clinical psychology, ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, फोरेंसिक साइकोलॉजी. ठीक है, ये सारी जो हैं साइकोलॉजी के अंदर हम टर्म्स पढ़ेंगे डिटेल्स के साथ. स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह. आज हम नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, तो हम ट्राई करेंगे नेचर एंड स्कोप को आज कंप्लीट करें, और अपकमिंग वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स को जो है वो इन टच करेंगे. आज की हमारी जस्ट इंट्रोडक्टरी वीडियो है रिलेटेड टू द स्कोप एंड नेचर ऑफ साइकोलॉजी. Basically, the definition of psychology is the scientific study of mind and behavior. ठीक है, माइंड और बिहेवियर की स्टडी को बोलते हैं साइकोलॉजी. साइको का क्या मतलब है? हमारी सोल. ठीक है, या हमारा माइंड. और लॉजी का क्या मतलब है? स्टडी. उसके बारे में स्टडी करना क्या कहलाता है? साइकोलॉजी. द वर्ड साइकोलॉजी वॉज फॉर्म बाई कंबाइनिंग द टू वर्ड साइकी एंड लॉजिया, which mean breath, principle of life, soul, and speech, word, reason, respectively. Psychology is the study of soul. Many branches of psychology are differentiated by the specific field to which they belong, such as animal, child, sports, forensic, educational, organizational psychology. Psychology basically क्या है? जैसे एक शख्स हमारे पास है, ठीक है, तो हम एक फिजिकली तो वो हमारे सामने है, हमें नज़र आ रहा है कि वो किस तरह से, लेकिन मेंटली उसको हम जजमेंट करें, या जो वो एक्शन करता है या वो जो सोच रहा है, ठीक है, तो वो सारा क्या कहलाता है? उसकी साइकोलॉजी. What is brain? Brain is a basically an physical organ of a body. Brain has a shape and size, weight. Brain can be touched and it is a hardware. जबकि माइंड क्या है? माइंड इज़ अ मेटाफिजिकल. इट हैज़ नो शेप, नो साइज, नो वेट. माइंड कांट बी टच्ड. माइंड इज़ सॉफ्टवेयर. Mind is a sum of total all the experiences of life. So what is behavior? Behavior is an action or series of action performed by an animal, human or object to stimulus. ठीक है, कोई भी स्टिमुलस उसे मिला है तो उसके नतीजे में उसने जो एक्शन परफॉर्म किया है वो क्या है? उसका बिहेवियर. फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, ठीक है, वो आग को छूने लगा है, तो जैसे ही उसने अपना हाथ आग के पास लेके गया, उसे महसूस हुई है हीट, जिसके नतीजे में उसने अपना हाथ पीछे कर लिया, तो ये उसे स्टिमुलस मिला है ना, हीट से. यानी उससे जो जिसकी बिना पे उसने वो एक्शन किया, और एक्शन उसने क्या किया? हाथ पीछे कर लिया. So stimulus may be something in the environment such as sound, a color or another individual object. सो ये नीचे एक डायग्राम बनाई हुई है. एक पर्सन आप देख सकते हैं, उसकी डिफरेंट जो है माइंड क्या कर रहा है, थिंकिंग प्रोसेस भी कर रहा होता है, बिहेवियर भी लर्न कर रहा होता है, नए नए रोज़. जैसे बच्चा है वो रोज़ कोई ना कोई नई बात सीख रहा होता है. बल्कि लर्निंग ऐसा प्रोसेस है जो बंदे की पूरी उम्र तक चलता ही रहता है. ठीक है, कभी वो कुछ सीख रहा होता है, कभी वो कुछ सीख रहा होता है. बायोलॉजिकल प्रोसेस जो है वो भी चलते रहते हैं, और अनकॉन्शियस प्रोसेस भी चलते रहते हैं. नेक्स्ट है साइकोलॉजी की डेफिनेशन. साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ हाउ पीपल थिंक, feel and its behavior. It includes underlying mechanisms that involve the environment, biology and mind. So the discipline embraces all aspects of the human experiences from child development to queer and for age for the function of the brain and the actions of nations. सो नेचर क्या है साइकोलॉजी की? इट इज़ अ साइंटिफिक स्टडी एंड प्रैक्टिकल. साइंटिफिक स्टडी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत रिसर्च होती है. आपने देखा होगा जो साइको होता है या जहनी मरीज शख्स होता है, उसके ऊपर पूरी रिसर्च होती है कि उसके पीछे हिस्ट्री क्या है, वो क्यों इस तरह का हुआ, ठीक है, और फिर क्या उसका स्टिमुलस बना, क्या थीसिस थी, फिर क्या उसके कंडीशन है. तो ये सारी थेरेपीज़ भी इसी बेस पे होती हैं. सारी रिसर्च के बाद कॉमन प्रॉपर जो है वो फिर इलाज होता है. Practical application of observable behavior and mental process of organism. Psychology differs from other social sciences such as sociology, history, and economics because psychology specifically deals with the study of an individual. इसकी नेचर क्या है? Related to genetics, ठीक है,
क्योंकि ब्रेन के साथ रेलिवेंट कर रही है ना, हमारे दिमाग के साथ, माइंड के साथ। सो इसलिए ये क्या है, जेनेटिक्स। नर्चर, ठीक है, रिलेट टू एनवायरनमेंट एंड फिजिकल अपीयरेंस एंड बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, अपब्रिंगिंग, सोशल इन्फ्लुएंसेस। सो इसका स्कोप क्या है साइकोलॉजी का आजकल के दौर में? साइकोलॉजी स्टडीज ऑल द डोमेन्स ऑफ बिहेवियर, इट कवर्स मैनी फील्ड्स सच एज, इट डील्स विद डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। हम देखते हैं कि एक शख्स जो है उसका बिहेवियर बाकियों के साथ किस तरह रिलेट करता है और किस तरह डिफरेंट है। इट डील्स विद कोग्निशन एंड परसेप्शन एंड इंडिविजुअल डिफरेंस। अब एक चीज़ है, ठीक है, उसे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से परसीव करते हैं, वो देखते हैं। इट डील्स विद सोशल एंड कल्चरल फोर्सेज दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। इट डील्स विद सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेज इन बिहेवियर फाइंड। It describes the unusual, strange behavior and devises the ways to control such behavior. It studies different aspects of environment that affects human behavior in any way. It assesses aptitude, intelligence, and interest of a person. So it also tries to investigate the factors that affect people working in organizations. It studies the factors that affect the social lives in individual. सो साइकोलॉजी को अगर हम एज अ साइंस देखेंगे, हम इसे साइंस कैसे कह रहे हैं? एक साइकोलॉजिस्ट था बहुत वेल नोन, अकॉर्डिंग टू पॉल टेलर, ठीक है, उसने कहा कि साइकोलॉजिस्ट यूज साइंटिफिक मेथड्स टू ऑब्जर्व, डिस्क्राइब, प्रिडिक्ट एंड एक्सप्लेन बिहेवियर and mental processes. These methods include control experiments, surveys, observation and clinical trials to among them. तो ये सारी चीज़ें कब होती हैं? जब हम कोई साइंटिफिक मेथड को स्टडी कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, तो इसीलिए इसको हमने साइंस कहा। साइकोलॉजी एज इट्स कोर, इट्स ऑल अबाउट साइंटिफिक मेथड. इट यूजेस एम्पिरिकल रिसर्च and careful observation to examine how people behave and think. To collect and analyze this data, researchers use a variety of approaches like surveys, experiments, observation, and statistical analysis. Psychology emerged as an independent academic discipline in 1879 by a German philosopher विल्हेम वुंडेंट, ठीक है, इसे मॉडर्न साइकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है। ये एमसीक्यूज में पूछा जाएगा कि हु इज़ द मॉडर्न फादर ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, तो विल्हेम वुंडेंट इस्टेब्लिश द फर्स्ट साइकोलॉजी लेबोरेटरी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लेपिस, जर्मनी। और ये भी पूछा जाता था कि पहली जो थी वो यूनिवर्सिटी, उसका क्या नाम था या कहाँ पे बनाई गई, ठीक है। साइकोलॉजी अटेम्प्ट्स टू अंडरस्टूड हाउ द माइंड क्रिएट्स इमोशन एंड मोटिवेशन बिहेवियर. It is generally divided into many subfields with focuses on different key aspects, explanations, and discipline. So the aim identifies the purpose of the research. It is straightforward expression of what the researcher will attempt to find out by conducting an investigation. So in our upcoming video or next video, we will do inshallah the topic school of thoughts for psychology and other outlines from this subject. So be with us, the competitive scholar, and take care of yourself. See you in the next video. Allah Hafiz.